next videos, next chapter. This is your chapter number 3, linear equations in two variable. Mainly we will learn in this chapter what is linear equations and how we solve the system of pair of linear equations. We have different method to get the solutions. Now first point is, what is linear equations? Let us take an example. Akhila went to a fair in her village. She wanted to enjoy rides on the joint wheel and play hoopla. Hoopla is a game in which you throw a ring on the item kept in a stall, and the ring cover any object completely, you get that object. That is the game actually, hoopla. The number of times she played hoopla is half the number of rides she had on the joint wheel. If each ride of ₹3 and a game of hoopla cost ₹4, how would you find out the number of rides she had and how many times she played hoopla, provided if she spent only ₹20? Now in this case, you can suppose, let the number of rides on joint wheel she had taken is X. Number of rides on joint wheel is X. Number of times she played hoopla, hoopla is Y. Now according to the statements, number of times she played hoopla, that is Y, is half, means 1/2. Number of times she ride on the joint wheels is X. This is the one linear equations that you get. X and Y are the variables. Second, the cost of each ride is 3, means 3X, and the cost of games play hoopla is ₹4, and she has only ₹20. This is your second equations. This is also linear equation in one variable. This is also linear equations in two variables. So this is the one examples that will clear you how to convert your languages in your linear equations in two variables. Now I have written few definitions on linear equations. A linear equation in two variables ax plus by plus c is equal to 0. Here x and y are the variables, as you have taken number of ride on joint wheels and number of times she played hoopla. And a, b and c are the constants. A and b are not equal to 0. A and b लिखा मैंने, दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते.
तो दिस इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. I have written one more points. Every linear equations in two variables has infinite many solutions. Because आप x की वैल्यू पुट करते रहेंगे तो y की आ जाएगी. It means that has infinite many solutions. This is very important multiple choice questions. Second point is, what is the meaning of solution? A solution of linear equation in two variables are the values of two variables, mean x and y की values होंगी, which satisfy the equations, which satisfy the equations. Means you can take an example. If I take x plus y is equal to 5, this is linear equation in two variables. It means if x is equal to 2 and y is equal to 3 is the solution of these equations. Because if you put x is equal to 2, y is equal to 3 in left hand side, you are getting 5, which is your right hand side. It means 2, 3 is the point which lies on this. 2 and 3 इसका solutions होगा. 1 and 4 भी हो सकता है, 0 and 5 भी हो सकता है, 5 and 0 भी हो सकता है. इसलिए मैंने ये लाइन लिखी है. Every linear equation in two variable has infinite many solutions. थ्योरी इंपॉर्टेंट्स हैं, पढ़ेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट इंटरेस्टिंग लगता है. नेक्स्ट पॉइंट है, the graph of the linear equations in two variable is a straight line. जब भी आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी. इज इट क्लियर? ये 100% ट्रू. एनी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इफ यू ड्रॉ ए ग्राफ ऑफ दिस, you will get a straight lines. Now I am coming on the next point. The system of pair means अब दो इक्वेशन होंगी, अब लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. मैंने ये दो सिस्टम्स मान लिए, a1x प्लस b1y प्लस c10, सेकेंड a2x प्लस b2y प्लस c20. अब अगर हम इनके सॉल्यूशंस की बात करें, जब हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इनका सॉल्यूशन या तो कंसिस्टेंट होता है या इनकंसिस्टेंट होता है. मतलब सॉल्यूशन ऑफ दीज टू इक्वेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज कंसिस्टेंट, अनदर इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट. किसको आप कंसिस्टेंट कहते हैं? ये बात मैंने यहां लिखी हुई है फर्स्ट पॉइंट में. इफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन. सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम मीन्स मैं पेयर की बात करता हूं. सिस्टम मीन्स पेयर, यहां पे दो इक्वेशनों की बात होंगी. हैज एट लीस्ट वन सोल्यूशन, वी कॉल देम कंसिस्टेंट, अदरवाइज इनकंसिस्टेंट. अब हम ये कैसे चेक करेंगे? इसके लिए मैंने कुछ कंडीशंस मेंशंस की हैं. कंसिस्टेंट में a1 अपॉन a2, ये कोफिशिएंट ऑफ x यहां से लिया, कोफिशिएंट ऑफ x यहां से, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ये कंसिस्टेंट होगा. और ग्राफ जो इसका आएगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस आएंगी, और यूनिक सोल्यूशन का मतलब है सोल्यूशन एक होगा. एक ही पॉइंट ऐसा होगा जो दोनों इक्वेशनों का पास सेटिस्फाई करेगा, मतलब दोनों इक्वेशनों का सॉल्यूशंस होगा. इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2. क्लियर? ये भी कंसिस्टेंट की कंडीशन है. सॉल्यूशन होंगे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस. मैंने यहां लिखा हुआ इनफाइनाइट many solutions.
और उसको हम कॉन्साइडिंग लाइंस कहते हैं, ओवरलैपिंग लाइन। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी। अभी हम इनके ऊपर डिस्कस भी करेंगे। इनकंसिस्टेंट मीन्स a1 upon a2 इक्वल टू b1 upon b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 upon c2। ये कंडीशंस है इनकंसिस्टेंट की। इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो लाइन पैरेलल्स आएंगी और सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन, कोई भी इसका आंसर नहीं आएगा, बिकॉज जब तक लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी हमें सोल्यूशंस नहीं मिलते। तो इन तीनों कंडीशंस को लर्न करने की कोशिश करना। हम क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लेते हैं, व्हाट इज द कंडीशन फॉर यूनिक सॉल्यूशंस। आप कहेंगे a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2। व्हाट इज द कंडीशन फॉर कोइंसिडेंट सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशंस। हम इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों से पूछते रहते हैं। ग्राफ का क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि हाउ इज द ग्राफ ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइंस। इस टाइप के हमारे क्वेश्चंस यहाँ पे आपसे पूछते जाएंगे। तो ग्राफ क्लियर होना चाहिए कि इन दोनों के ग्राफ किस टाइप के आएंगे। नेक्स्ट, I have written next point, solution of system of linear equation can be obtained graphically and algebraically। मतलब सिस्टम का मतलब हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, हम इनको ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हैं और एल्जेब्रिकली। इस चैप्टर का बेसिक मीनिंग यही है कि आपको ये सिखाना कि हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। although there are 4 methods, but in your practice one method that is a shortcut method that you should know, because in higher classes that method will be used again and again। एक बार हम सारे मेथड्स आपको कराएंगे, बट आपको प्रैक्टिस एक मेथड की ज़्यादा करनी चाहिए। सोल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी ऑब्टेन्ड, 2 मेथड्स हैं, एल्जेब्रिकली एंड, आज हम इसमें ग्राफिकली डिस्कस करेंगे इस वीडियोस में। इन ग्राफ द पॉइंट कॉमन टू बोथ द इक्वेशंस आर कॉल्ड द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ऐसा कोई पॉइंट जो दोनों लाइनों के ऊपर कॉमन आ जाए उसको हम लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशंस कहते हैं। फॉर ड्राइंग ए लाइन, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स। सो इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस वी नीड ओनली 2 सॉल्यूशंस। We need only 2 solutions. Third point is taken only as a checking reference। चेकिंग रिफरेंस का मतलब यह है कि अगर हम तीसरा पॉइंट लेते हैं वो भी उसी लाइन की सीध में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि हमारा ग्राफ ठीक है, क्योंकि ग्राफ तो हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होगी। टेक एनी कॉन्वेनेंट मेजर्स ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज ऑन, मीन्स मेजरमेंट उसके ऊपर डिपेंड करती है कि आपकी स्टेटमेंट कैसी है। मान लो बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं 100, 200, 300, तो हम जो डिविजन है वो 100, 200, 300 में ले लेंगे। छोटे हैं तो 1, 2, 3 में ले लेंगे। 50 के करीब है तो 5, 10 में ले लेंगे। मतलब मेजरमेंट हम इस टाइप से लेंगे कि 10 बॉक्सेस से कम या ज़्यादा यूज़ नहीं होने चाहिए। 8 या 9 बॉक्सेस में आपका ग्राफ कवर होना चाहिए। तो ये मैंने आपके ग्राफिकली की मेन बातें बताई, आप इन पॉइंटों को ध्यान से पढ़ते रहिए। अब हम एक्सरसाइज 2.1 के सम्स डिस्कस करेंगे, 3.1 सॉरी। आल्दो इसमें एग्जाम्पल्स भी हैं, पर एनी हाउ लेट मी टेक एक्सरसाइज क्वेश्चन एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं। Aftab tell his daughter, I am taking your first questions. I was 7 times as old as you were, and you were then, and also 3 years from now
I shall be 3 times as old as you will be. Represent these situations algebraically and graphically. आफ्ताब और उसकी बेटी की बात हो रही है. आप कह सकते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज x years and his daughter age is y years. Let the present age of Aftab is x year and his daughter age is equal to y year. According to statements, Aftab means x. 7 years ago means x minus 7 is equal to as old as you were then. 7 years ago I was 7 times. टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, एज यू वर देन, जब आपकी उम्र उतनी थी, तो y माइनस 7. आप यहाँ सिंप्लीफाई कर सकते हैं, x माइनस 7y इज इक्वल टू या प्लस 42 इक्वल टू 0. ये एल्जेब्रिकली पहला इक्वेशन का आंसर आ गया. Second point, also 3 years from now. 3 years from now means 3 साल बाद. I will be 3 times as old as you will be. Now 3 years means x plus 3 is 3 times of y plus 3. Simplify x minus 3y minus 24 is equal to 0. ये algebraically सेकेंड इक्वेशंस आ गई. ये 3 आएगा, सॉरी, इफ दिस इज 3 9 तो दिस इज माइनस 6. नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशंस ग्राफिकली आल्सो. इसमें सिर्फ आपको सिचुएशंस ही रिप्रेजेंट करनी है. मतलब यहां पे इन्होंने कोई सॉल्व नहीं करना आपने. अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव टू रिप्रेजेंट ग्राफिकली. ऑल्दो इसकी लाइनें इंटरसेक्टिंग आएंगी, बिकॉज a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2. तो देखिए हम इसको काम कैसे करते हैं. ग्राफिकली के लिए फर्स्ट इक्वेशन के ग्राफ का टेबल बनाते हैं. x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0. मैंने आपको कहा कि पॉइंट्स 2 ही काफी होते हैं. ये मैंने लिखा है, ये x ले लें और ये y ले लें. मैं तो एक पॉइंट x को 0 लेता हूं तो y 6 आ जाएगा,
y0 लेता हूं तो x -42 आ जाएगा। क्लियर? अगर जब मैं x की वैल्यू 7 लेता हूं तो y की वैल्यू भी 7 आ जाएगी। मैंने कहा था रेफरेंस में थर्ड पॉइंट हम ले सकते हैं। इसी तरीके से मैं x - 3y - 6 = 0 का ग्राफ बनाता हूं। ये टेबल बनाते हैं हम। x को 0 लेते हैं, y की वैल्यू -2, y0 x की वैल्यू 6। ये सब्स्टिट्यूट करके लेने होते हैं। अगर जब y0 पुट करेंगे तो x 6 आ जाएगा। इसको कोई सॉल्व करके दिखाने की भी जरूरत नहीं होती। जिनको नहीं निकल रहा वो सॉल्व कर सकते हैं। इफ आई पुट x = 3 तो y विल बी इक्वल टू -1, बिकॉज थर्ड पॉइंट भी लेना आपका जरूरी है। अब अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, ये वाली बात तो मैंने बता दी आपको। फॉर ड्राइंग एन लाइन वी नीड ओनली 2 पॉइंट्स इन ऑर्डर टू ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, थर्ड पॉइंट में बी टेकन एज पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो वो थर्ड पॉइंट्स मैंने यहां पे इसी कारण से लिया है। पहले तो आपके माइंड में कंडीशन चेक कर सकते हैं कि लाइनें इंटरसेक्टिंग आएंगी। ठीक है, मैं ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं आपको समझाने की। आप इसको एक्स एक्सिस आप ग्राफ पेपर पे ही ड्रॉ करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में हम स्लैब्स डिवाइड कर लेते हैं। हम यहां पे 6 के मल्टीपल्स मुझे नजर आ रहे हैं, तो मैं 6, 12, 18, 24, 30, 36 एंड 42 इस टाइप से ले सकता हूं। क्योंकि 6, 42, 7 है तो थोड़ा सा अगले पॉइंट पे ले लेंगे, कोई इश्यू नहीं है। ऊपर वाले पॉइंट्स में भी हम इसी टाइप से ले सकते हैं, अलग भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं कि ऊपर और नीचे के सेम लेने होते हैं। चलो हम यहाँ पे इस टाइप से आने लेके 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 एंड 45 ले सकते हैं, ताकि आपको मल्टीपल ऑफ 5 देखने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। हर 10 बॉक्स को आप 5 कह लीजिए। फर्स्ट इज x0 एंड y6। 6 ये होगा, इट मीन एक पॉइंट आप ये कह सकते हैं ए का पॉइंट मैंने क्या ले लिया, x0 एंड y6। x0, y0 एंड x -42। -42 इधर आके लाई करेगा। यहां पे लगभग मैंने ले लिया 0 -42। दिस इज पॉइंट बी। C इज 7, यहां कहीं लाई करेगा। ये पॉइंट C है, कोऑर्डिनेट इज 7, 7। If you draw this line, एरो डाल के हम इसके ऊपर लिख देंगे x - 7y + 42 = 0। ये हमारी वर्किंग रहेगी। और सेकंड केस में अगर हम
जीरो और -2 लें, x 0 है और y -2, तो हम ये पॉइंट ले लेंगे 0, -2। इसको आप a डैश कह लें। 6, 0, x 6 है और y 0 है। 0, -2 यहां आएगा क्योंकि y नेगेटिव है। क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही तो गलती मिल जाती है। x3 if you put x is equal to 3, यहां पे होगा y -1, तो ये पॉइंट आएगा। तो यहां से ना इस टाइप की लाइन आएगी। ये ग्राफ इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट, कॉमन पॉइंट आएगा। एक ये पॉइंट मैंने a डैश कह दिया, ये b डैश कह दिया, और ये पॉइंट c डैश है जिसके कोऑर्डिनेट 3 और -1 ले लिए। b डैश के कोऑर्डिनेट मैंने 6 और 0 लिए हैं। a डैश के कोऑर्डिनेट मैंने 0 और -2 लिए हैं। जब आप इसका ग्राफ का ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ग्राफिकली सोचेंगे तो लगभग आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यहां से तो नहीं क्लियर कट मिलेगा, बट जब आप इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करेंगे तो यू विल गेट योर डेफिनेटली ए गुड आंसर्स। क्योंकि मैंने जो यहां से ट्विस्ट किया है लाइन को, ऐसे ना करके इसको चलने दो और इसको भी ऐसे करके प्रोड्यूस करने दो, तो जहां पे ये मीट करेगा सीधी सीधी लाइनें, वो इसका आंसर हो जाएगा। एंड आंसर कैन ओनली बी फाइंड आउट when you draw the graph in a proper scales। और यह हमें पता ही था कि a1 upon a2 means 1 upon 1 is not equal to 7/3। it means intersecting lines। ठीक है। और अगर जो कंडीशन देखें तो यूनिक सोल्यूशन, यूनिक का मतलब होता है वन एंड ओनली वन सॉल्यूशंस। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट क्वेश्चंस। सेकंड क्वेश्चंस की रीडिंग करते हैं। कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम्स बाय 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स ₹3900। लेटर शी बाय अनदर bat and 3 more balls of same kind ₹1300। represent the situation algebraically and geometrically का मतलब ग्राफिकली होता है। आप लिख सकते हैं let the cost of one bat is ₹X and the cost of one ball is ₹Y। according to the situations, according to problems, according to the situations, 3 bats and 6 balls, 3x plus 6y is equal to 3900। next, x plus 2y is equal to 1300। अब यहां से देखेंगे a1 upon a2, b1 upon b2, मतलब आप यहां से बेसिकली ऐसे लिखेंगे कि a1 upon a2 इज 3/1, फिर यहां पे b1/b2 इज इक्वल टू 6/2, जो सिंप्लीफाई करके 3/1 ही आएगा। एंड c1 upon c2 इज 3900 upon 1300, जो सिंप्लीफाई करके 3/1 आएगा। इट मीन्स a1 upon a2 इज इक्वल टू b1 upon b2 इज इक्वल टू, इसका मतलब कोइंसाइडिंग लाइंस आएंगी। मेरा कहने का मतलब कि ओवरलैपिंग लाइन आएंगी।
एक लाइन ड्रॉ करेंगे दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएगी। आपको अगर ये कंडीशन आप चेक कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत फायदा रहेगा। अब मैं आपके लिए बेसिकली एक का टेबल्स बना देता हूं। वैसे तो मैंने आपको कहा कि जैसे x + 2y = 1300 है। अब मेरे विचार तो बड़े क्लियर हैं कि अगर जो मैं x को 0 लेता हूं तो y मेरे पास 650 आता है। अगर जो मैं y को 0 लेता हूं तो x मेरे पास 1300 आता है। क्लियर। अगर जो मैं तीसरा पॉइंट वेरीफाई करने के लिए कोई ले लूं, सपोज करो मैं x को 500 लेता हूं तो y 400 आ जाएगा। मतलब यहां पे 1 2 3 से बात नहीं चलेगी, बिकॉज इधर पैरेलल में 1300 पड़ा हुआ है। अगर जो आप इसको ग्राफिकली देखेंगे, यहां पे जो आपको डिवीजन करनी चाहिए वो 100, क्योंकि 1300 तक जाना है, आपने 13 कॉलम तक जाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम यहां पे 200, फिर 400, फिर 600, 800, thousands एंड 1200 इस टाइप से करें तो बेटर रहेगा। सेम स्केल आप ऊपर रख सकते हैं। मतलब ये मैंने फिर आपको आइडिया दिया है कि किस तरीके से ब्रेक करना चाहिए। thousands, 1200 एंड सो ऑन। अब x0 ठीक है यहां पे लाई करेगा और 650 एक पॉइंट तो ये आ गया a 0,650। y0 1300 ये पॉइंट आ गया b 0,1300। x 500 यहां पे और 400 यहां, ये पॉइंट आ गया सी। ज्वाइन कर लीजिए। आराम से पेंसिल से ड्रॉ करेंगे तो ओवरलैपिंग लाइन बनेगी। कंडीशंस आपने पहले ही चेक कर ली। अगर जो आप इसके सॉल्यूशन नहीं पूछे उसने एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली इस टाइप की आपसे बातें करी। मैंने थोड़ा सा इसमें अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस में मैंने 2 मोर बॉल्स लिख लिया। यहाँ पे 3 मोर बॉल्स का क्वेश्चन है। इज इट क्लियर? उसमें मैं करेक्शंस करा देता हूँ, इसमें कोई गलती नहीं है। मतलब आधा तो ये ठीक ही माना जाएगा, लेकिन अगर हम दूसरी कंडीशन इसकी पकड़ें x + 3y = 1300 बिकॉज 3 मोर बॉल्स आर टू बी टेकन। इसका मतलब यह है कि अब हम इसमें और इसमें चेक करेंगे तो 3/1 तो ठीक है, ये 6/3 आएगा और ये भी ठीक है। तो बेसिकली ये 2/1 आ जाएगा। तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो इसमें c1 c2 चेक करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब कंडीशन फिर यूनिक सॉल्यूशन की बनेंगी। ठीक है, इसका मतलब आप x + 3y = 1300 का भी टेबल आपको बनाना पड़ेगा। ये x और ये y है। अब ये बेसिकली जब आप y को 0 लेते हैं तो x तो 1300 आ गया, लेकिन अगर जब मैं x को 0 लूंगा तो 1300/3 आएगा, कुछ डेसिमल्स में आएगा। चलो आप उसको चाहें तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं।
इसलिए जब आप x को यहाँ पे 400 ले लें, माइनस करेंगे तो 900, तो ये 300 आ जाएगा। क्लियर? और तीसरा पॉइंट आपको लेने के लिए x की वैल्यूज -200 ले लें, तो ये 500 आ जाएगा। तो ये मैंने टेबल्स आपके 100 की शेप में ले दिए। इसमें काम करने के लिए x 1300 y 0, ये पॉइंट तो कॉमन ही रहेगा। 400 एंड 300 यहाँ पे कोई पॉइंट आ जाएगा। x की वैल्यू -200 एंड 500, यहाँ कोई पॉइंट आएगा। तो मीन्स ये जो ब्लैक पेन से मैंने लाइन ड्रॉ करी है, ये बेसिकली यहां से ऐसे क्रॉस कर जाएगी। क्लियर? तो इस लाइन का नाम आएगा x + 13y = 1300। तो थोड़ा सा चेंज कर दिया है मैंने। पहले मैंने 2 मोर बॉल से कर दिया, मैंने 3 मोर बॉल से कर दिया है। एक इक्वेशन तो ठीक ही थी, दूसरी में थोड़ा चेंज किया है। वैसे बहुत सुंदर ग्राफ इसके ग्राफ पेपर पे ही बनेंगे, तो ग्राफ पेपर पे ही आप ग्राफ बनाने की कोशिश करना। थोड़ा सा डिवीजन ऑफ स्केल में बच्चों को डाउट होता है कि बड़ी हैं छोटी हैं, इसलिए आप स्केल ऐसे डिवाइड कर लें। इसमें 6 ग्राफ आपके बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, the cost of 2 kg apple and 1 kg grapes on a day was found to be rupees 160, and also after 1 month the cost of 4 kg apple and 2 kg grapes is rupees 300. Represent the situations graphically. लिखेंगे let the cost of one kg apples is rupees x, cost of 1 kg grapes is rupees y. According to the situations, 2x plus y is rupees 160. Second, 4x plus 2y is rupees 300. इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 2x plus y is equal to 150, because 2 कॉमन्स लेके कैन बी सिंप्लीफाइड। अगर हम यहां से चेक करें कि a1/a2 is 2/2, b1/b2 is 1/1, and c1/c2 is equal to 160/150. So this implies a1/a2 is equal to b1/b2. Graph is a parallel lines. मतलब ये आइडिया आपको यहां से लग जाना चाहिए। टर्म्स कोई बहुत बड़ी नहीं है। 2x plus y is 160। इसका पहले हम ग्राफ बनाएंगे। x and y. If I take x 0, y is 160. If I take this, this is your 80. Clear? If I take x 30, y will be 100. सिचुएशन 160 को देख के अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। मतलब ये नहीं कि जो आपके सीधा सीधा जो भी आप करना चाहेंगे, 3 पॉइंट्स लेने जरूरी हैं। x 0, y 150,
y0 it is 75. Clear? If I take y is 50, this is also 50. क्लियर? अब इसमें जो डिविजन्स बनानी चाहिए मेरे हिसाब से 10-10 की बना लो। ये भी एक स्टूडेंट्स के दिमाग में डाउट रहता है। ऐसे ही 10 की इधर ले लो, कर लेना पूरा। सिक्सटी, y भी 100 तक तो जाएगा ही, 10 तक तो जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर ये 0 to 160 है, ये 150 है। इसका मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा जाने की बजाय आप इसको रिड्यूस कर लो, 20-20 का बना लो, क्योंकि 16 टेबल तक जाना भी कोई आइडिया नहीं है। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 and 160. 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 and 160 both are 0 and 160 x0, this is a point. 80 and 0, this is the point. 30 and 100, this is the point. Draw the lines. Equation is 2x plus y is equal to 160. x0, y 150, this is the point. 0 and 75, this is the point. 50 and 50, this is the point. तो मीन्स लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी। जो आपकी कंडीशंस आ रही हैं, कंडीशन से आपको आइडिया मिल जाएगा कि लाइंस मेरी कैसे आएंगी। तो ये मैंने आपको जो बना रहा हूं, मैं सिर्फ आपको टेबल समझाने के लिए बना रहा हूं। मीन्स बड़े बड़े क्वेश्चंस में जब आप एनसीईआरटी के सम्स करते हैं तो इस टाइप की आपको प्रैक्टिस यहां मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 2.1। लाइन थोड़ी सी आपको पैरेलल नजर आनी चाहिए, पॉइंटों को आप थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं क्योंकि ये रफ है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो डेफिनेटली ग्राफ बहुत सही आएगा। यही टेबल्स आपने ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने।